लेट्स से कोई एक फाउंडर है, उसने अच्छा काम किया है, पीक पे है, उसको कैसे पता चले कि वो पीक में है? ये डिपेंड करता है। सी एग्जिट स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है ना। हाँ। आप कभी आपको एमएनए का ऑफर मिलता है, कभी आप आईपीओ करते हो, कभी आप कंपनी को प्राइवेट लेके चले जाते हो, कभी कोई स्ट्रेटेजिक खरीद लेता है, कभी कोई फाइनेंशियल खरीद लेता है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें ग्रो अप करती हैं। पैसा फाउंडर्स को दिया जाता है, कंपनी एक मीडियम है उस आइडिया को पूरा करने के लिए। कैपिटल इज अ रिसोर्स। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कंपनीज और स्टार्टअप्स विद वैल्यूएशन ऑफ एक्सीडिंग 1 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन यूएस डॉलर करीब करीब 8,400 करोड़ रुपए की बात है। जो पैसा ठीक से हैंडल कर पाएगा या लेपेबल है हैंडल करने में, पैसा एंड में उसी को मिलता है। So today our guest is Mr. Edison Appu. He is the partner of Thinkubate. So they have launched 100 crore fund in India, and also we will learn about the Indian ecosystem, how to pitch, and how the founder can create a sustainable business. So let's start. So Mr. Edison, आपकी जो जर्नी है ना बहुत fascinating है. So can you just give us a snippet कि how you started? सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में बताता हूँ Sure, sure. फॉर योर ऑडियंस। सो आई हिल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन and then I did my graduation from Calcutta University and then masters from the Hyderabad, ICFI Hyderabad. Then I मेरा पहला जॉब पंजाब नेशनल बैंक ट्रेजरी में था, तो आई डिड दैट। उसके बाद I worked for Union Bank of Switzerland, Lazard, and HSBC in India and Hong Kong and London for about 5 years. Okay. Then On-site or off-site? on-site, On-site. on-site and off-site both. Okay. And then उसके बाद I got the opportunity to work on the corporate side. तो मैंने देखा grass is maybe greener on the other side. So I joined an Indian corporate as their international business person. So did that for about a year and then got an opportunity to start up. Startup bug hit me. Very senior piece person on the in the industry जो engineering background से थे. He wanted to do something in the financial consulting space. So we formed our own company, financial company, services company, and then it grew well. 17 में I got the opportunity to exit. Oh, So 2017 में. yeah, Okay. so 17 में I sold my position and then I met my current partner Ghanshyam, Okay. who was also had a similar background. He was a career professional and then he started his own business. And then he started Thinkuvate. And Thinkuvate was like a group of friends coming together, not just to invest, but also uh, to share what they had learned in the industry. So Ghanshyam and I mile, we clicked instantly. Very similar thought process. Then he said ki they had invested in 4 companies by that time. By the time till I came on board. Okay. And उसके बाद क्या हुआ कि when I came on, आज we were four investments. Today we have 26 investments and counting. 26. Yes, globally. And उसमें से one company got IPO'd on the Australian Stock Exchange, and we can discuss it in detail. Oh, wow. Okay. And then there are 2 companies in Series B. There are 6 companies in Series A. हमने फेलियर्स भी देखे हैं। कोविड के कारण 2 कंपनीज हैड टू शट डाउन। Oh, एक कंपनी had a lot of impact because of the Russia-Ukraine war. So that shielded up because they were supplying uh, to defense. right. And एक कंपनी was way ahead of its times. तो टेक्नोलॉजी जो उसने डेवलप की थी, when it was developed there was no taker, but आज के day and age में बहुत relevant है. Oh, So long and short of it, 20 years and counting in experience. Uh, Started with treasury operations, then iBanking, private equity, international business, and now venture capital. So wow. seen a few things in life, but हाँ, every point कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला ही है, because uh, not every day do you meet people who are thinking न्यू एंड डिफरेंट। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि चाहे वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर हो, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिल्ड आउट समथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हिच विल फिल अ गैप। सो इट हैज़ बीन फैसिनेटिंग। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ, मतलब आपने हर एक मतलब डोमेन में एक-एक ची मतलब ऑलरेडी गिवन अस सर्टेन टाइम,
आपने बहुत सारे नॉलेज दिया कि इज दैट अ थिंग कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है कि स्टार्टअप के अंदर कोई भी चीज़ हो तो यू कैन गेट इन टू दैट एंड आप उसके थ्रू आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सी जहाँ तक वैल्यू का बात है ना, ये बेसिकली सिस्टम क्रिएट करता है। वैल्यू इज़ क्रिएटेड बाय द सिस्टम। ओके। यू आर ओनली अ मीडियम। जनरली स्टार्टअप्स कैसे बॉर्न होते हैं, व्हेन आई से बॉर्न तैयार होते हैं या स्टार्ट होते हैं, तो कोई 2 या 3 लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार ये काम हम ऐसे करते हैं, या ये काम हम करना चाहते हैं, या ये काम होना चाहिए। यही 3 वजह होती है कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होने की। एक उसकी ज़रूरत, एक उसका इम्पैक्ट, और तीसरा उसमें से थोड़े बहुत पैसे बनने चाहिए। थोड़े बहुत इन द सेंस कि इट शुड बी हाँ। प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रो बोनो कर रहे हो तो वो फ्री होता है। अगर चैरिटी कर रहे हो तो उसको प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। ठीक है? सो स्टार्टअप के अंदर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो फर्स्ट देयर शुड बी अ नीड, देन देयर शुड बी डिमांड, देन देयर शुड बी प्रॉफिट। इसके बिना कोई भी बिज़नेस सस्टेन करना मुश्किल होता है। ठीक है? हाँ। तो जहाँ तक आपका सवाल है, उसमें मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब हम कोई भी स्टार्टअप देखते हैं तो 3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हो जाती हैं। एक, उस स्टार्टअप की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है? ज़रूरत का मतलब, इज़ इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और इज़ इट अ री और इट इज़ रीइन्वेंशन ऑफ द व्हील। मतलब कुछ है उसको। पैसे सिर्फ़ 2 तरीके से बनते हैं, आइदर तो आप पहले सोचो या अलग सोचो। सो थिंक फर्स्ट और थिंक डिफरेंट। ओके। ठीक है? रियल पैसा उसी में बनता है। थिंक फर्स्ट का मतलब होता है आपने इनोवेट कर लिया। थिंक डिफरेंट का मतलब होता है आपने उस इनोवेशन को अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, यूज़ केस के हिसाब से। ओके। सो हमारा व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड ओवर दीज़ इयर्स इज़ द फैक्ट दैट वैल्यू प्रोपोज़िशन क्लियर होना चाहिए, वैल्यूएशन जनरली फ्लो कर जाता है उसके पीछे-पीछे। ओके। सो उम, हम जब अपने अलग स्टार्टअप्स को देखते हैं, तो हम ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू क्रिएशन जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब लाइक आप उसमें क्या डिराइव करना चाहते हो उस चीज़ को करके, क्योंकि हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको हम आउटकम ड्रिवन चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन चाहते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है? एक होता है ऑब्जेक्टिव, हम क्यों कर रहे हैं, एक होता है आउटकम, हमको क्या चाहिए। वो दोनों चीज़ जब मैरी कर जाता है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू इज़ क्रिएटेड एंड वैल्यूएशन फॉलोज़। करेक्ट है। अच्छा सर आपने पहले तो एक को-फाउंडर थे, राइट? यू हैव सीन अ एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो आप मुझे एक चीज़ बताएँ, आपकी अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स देखा था आपने? एंड आपकी क्या वन लर्निंग है? ऐसी क्या लर्निंग है कि मतलब वो आपको पावर फ्यूल करता रहा कि अभी तक आप मतलब कोई भी सेटबैक हो उसके ऊपर आप आगे बढ़ते गए? सी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ चीज़ है, ओह! बहुत टफ चीज़ है। ओके। इन द सेंस अ, आपको 30 तारीख को जब सैलरी नहीं मिलती है और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है ना, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, अभी तो बहुत लोगों के पास जॉब है, वो भी टेंशन नहीं है। चाहे 30 तारीख को पैसे आ ही दी। मतलब सी जिसके पास 1 है उसको 10 का प्रॉब्लम है, जिसके पास 10 है उसको 100 का प्रॉब्लम है, जिसके पास 100 उसको 1000 का प्रॉब्लम है। राइट, राइट। ऐसा तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट इज़ ड्रिवन बाय बोथ नीड एंड एम्बिशन। ठीक है? लेकिन हैविंग सेड दैट अ, मेरे करियर के अंदर अप्स एंड डाउन्स, ऐसा कोई भी करियर नहीं होगा जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप में पीस फॉर पेशेंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रेज़िलियंस हुँ। एंड पैशन दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सक्सीड नहीं करोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है टू जस्ट लीव इट मिडवे, प्रेशर्स के कारण। मतलब ओके। अ, अर्ली स्टेज में प्रेशर होता है कि आपको जॉब में नहीं मिला, हुँ, you are living with your parents, so that is a separate set of problem. When you are married and having family to pay the bills, there is a problem. जब आप थोड़े से एजेड हो जाते हो तो to think fast, nimble on your feet, doing हुँ, things much faster, that becomes a problem. सो एक चैलेंज होता है करियर का, दूसरा चैलेंज होता है फैमिली का, तीसरा चैलेंज होता है आपके अपने स्टैमिना और स्ट्रेंथ। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये प्रॉब्लम्स अलग-अलग लोगों के अलग-अलग साथ में होते हैं। तो चैलेंजेस नहीं होंगे ये तो बोलना बिल्कुल गलत बात है। हुँ। क्या होते हैं मेरे हाउ आई टैकल्ड इट, सी स्ट्रेंथ लाइज़ बिटवीन योर 2 ईयर्स,
not in your physical body. So the more mentally strong you are, the better you will be able to equip or fight the situation. खराब नहीं तो आएगा ही आएगा, ठीक है? लेकिन बहुत ज़रूरी ये होता है, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या? वो चीज़ आपको खुद डिफाइन करनी होती है। मतलब क्लैरिटी रखना पड़ेगा। क्लैरिटी रखना तो ज़रूरी है, लेकिन एक एंड गोल होना बहुत ज़रूरी है। च हाँ। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो, अगर आप गाना गाते हो, तो आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा कि आप कहीं तक पहुँच सको। सी, मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ इन 2 पार्ट्स, हार्ड वर्क एंड लक, ओके। ठीक है? तो हार्ड वर्क करने से तो बचना नहीं है, करना ही पड़ेगा। 90% हार्ड वर्क है। रियल सक्सेस, यस, 10% लक की भी ज़रूरत पड़ती है, ओह! क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि आपने चीज़ की, या आपसे आपसे पहले आपसे बेहतर किसी ने कर दी, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिला, ठीक है? या या आप करें और आपके किसी वजह से आपके हाथ में जो डिसीजन नहीं है, जिसको मैक्रो मैक्रो रेगुलेशंस, या समथिंग टू डू विथ सॉवरेन रिस्क, समथिंग टू डू विथ मार्केट रिस्क, जो आपके हाथ में नहीं, कंट्रोल में नहीं। जैसे कोविड आया, किसी ने देखा नहीं था कोविड को, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। बट इट इम्पैक्टेड बिजनेसेस, इट इम्पैक्टेड लाइफ। तो बहुत सीवियर। लॉट ऑफ थिंग्स वेंट साउथ, इन सेंस कि बंद हो गया। तो वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में, दैट इज़ योर हार्ड वर्क, योर मेंटल स्ट्रेंथ। सो मैंने अपने करियर में जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, टू आंसर योर क्वेश्चन, it's about the strength between your 2 ears, which is your mind. हुँ, That you have to remain focused, you have to remain resilient, and work hard enough that you get lucky. हुँ। मतलब माइंडसेट शिफ्ट होना नेगेटिव से पॉजिटिव इज़ मच इम्पोर्टेंट रादर देन अ लक। सर एक चीज़ बताएँ, आपकी जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जर्नी था, ठीक है? यू वर अ को-फाउंडर, राइट? और अ फाउंडर? Co-founder. यू वर को-फाउंडर। तो आपकी उसमें कैपिटल भी लगा था? हाँ, अच्छा, तो क्या जान सकते हो कितना अप्रॉक्सिमेटली लगा था ऑन एन एवरेज? कंपनी फॉर्म करने के लिए कभी 1 लाख से, कभी 5 लाख से कंपनी खुलती है। हमारा वाला, आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का ही था। ओके, ओके। एंड आपको एग्ज़िट कितने का मिला? ठीक-ठाक। वाओ! मतलब अगर अगर मैं मल्टीपल टाइम के बताऊँ, हुँ, तो मल्टीपल क्या मिला आपको? जितना अपार्ट फ्रॉम योर मतलब नहीं, जो जितना मैंने मेहनत सैलरी? किया था, मैं इतना बोल सकता हूँ कि प्रॉफिटेबल था, अच्छा, एंड जितना मैंने मेहनत किया उसके हिसाब से मुझे मिला। ओके। मतलब सी, एट द एंड ऑफ द डे, प्रॉफिट्स एक ऐसा वर्ड है ना कि हुँ, जितना मिले उतना आदमी खुश रहता है। देयर इज एनफ फॉर मैन्स नीड, बट देयर इज नेवर एनफ फॉर मैन्स ग्रीड, ठीक है? बट समटाइम्स क्या होता है कि अ, जिस तरह से दुनिया चलती है ना, हुँ, हुँ। जो आज रेलेवेंट है कल रिडंडेंट हो जाता है, ओके, ठीक है? ओके। तो यू हैव टू थिंक कि आपको क्या करना है आगे, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? सो हैविंग सेड दैट, बिज़नेसेस शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट एग्ज़िट। एग्ज़िट होता है, इट्स अ हुँ, हुँ। नेचुरल प्रोसेस। हुँ, हुँ। बट कहीं डीप डाउन यू शुड नो दैट व्हेन टू एग्ज़िट। ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिज़नेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। कभी-कभी क्या होता है कि आप अच्छा बिज़नेस बनाते हो, एक पीक पहुँचता है, उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है। हाँ, पीक पे आपको शायद अपने पूरे मेहनत का सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है। हाँ, उसके बाद वो फ्लैट हो चुका होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये, इट्स लाइक, टेबल से कब उठना है, ये एक ट्रिक है, ये सबको नहीं आता। ये कैसे करना होता है? लेट्स से कोई एक फाउंडर है, उसने अच्छा काम किया है, पीक पे है, उसको कैसे पता चले कि वो पीक में है? ये डिपेंड करता है, सी एग्ज़िट स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग होती है ना। हाँ, आप कभी आपको एम&ए का ऑफ़र मिलता है, कभी आप आईपीओ करते हो, कभी आप कंपनी को प्राइवेट लेके चले जाते हो, कभी कोई स्ट्रैटेजिक खरीद लेता है, कभी कोई फाइनेंशियल खरीद लेता है। अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग चीज़ें ब्रू अप करती हैं, मतलब आती हैं सामने। लेकिन बोलने का मतलब है मोटा-मोटा कि ये जो अ, कंपनीज़ का रियल ग्रोथ हुँ, हुँ। ऑलवेज़ आपका निम्बल ऑन फीट पे होता है। मतलब आप कितना कितना फ़ास्ट, सी, ऐसा कोई भी, मैं एक
उस दिन एक मीटिंग में बैठा था तो बोला कि स्ट्रेटेजी क्या है, हम्म what is your company strategy? हम्म And that gentleman told that जो मेरा कंज्यूमर चाहता है वो मेरा स्ट्रेटेजी है। और कंज्यूमर तो बहुत कुछ चाह सकते हैं। करेक्ट। उसमें दूसरा आंसर उसका ये था कि जो हम कर सकते हैं उसके चाहत के हिसाब से दैट इज माई स्ट्रेटेजी, दैट इज माई कोर स्ट्रेटेजी, जो हम डिलीवर कर पाएंगे एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म में। हाँ हाँ ठीक है, तो विच इज अ वेरी इजी लेमैन वे ऑफ डिफाइनिंग कि हम जब स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना कि हम पूरा 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन लगा के बोर्ड रूम में बैठ के बनाते हैं स्ट्रेटेजी, लेकिन स्ट्रेटेजी तो वही है ना जो काम करे हाँ एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे अगर वो फ्रूटफुल नहीं निकला तो वो स्ट्रेटेजी सर। तो सो मेरा अपना थिंकिंग प्रोसेस ये रहता है कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके कैपेबिलिटी और आपके विजन और आपके आउटकम के लाइन में होनी चाहिए। आप कैपेबिलिटी मतलब आप क्या कर सकते हो करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि मैं तेंदुलकर जैसा बैटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है तेंदुलकर है, ठीक है कि नहीं? तो ये मतलब अगर मैं तेंदुलकर को बेंचमार्क करके अगर मानो उसके हाफ तक भी पहुँचता हूँ, हाफ का मतलब है मे बी हाफ से थोड़ा ज़्यादा पकड़ लो, मतलब मे बी कोहली पहुँचता हूँ, ठीक है? इन टेस्ट क्रिकेट के का मामले में क्योंकि वो ही गॉट 15,000 ही इज़ एट 9,000 एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे बता रहा हूँ। जी जी तो एट लीस्ट यू विल अचीव समथिंग राइट? यू विल स्टिल बी वन ऑफ द ग्रेट्स बट सो वो कैपेबिलिटी की बात होती है, एबिलिटी की बात होती है। आउटकम होता है आप करना क्या चाहते हो, तो आपको एक गोल डिफाइन होता है, आपको 100 करोड़ चाहिए, आपको 10 करोड़ चाहिए, आपको 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है? आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। एवरीबडी हैज़ देयर ओन एम्बिशंस, ओन ड्रीम्स, ठीक है? और एक कैपेबिलिटी हो गया, एक आपका आउटकम या मिशन या गोल हो गया। तीसरा होता है विजन। विजन मतलब आप अपने आप को और इस जहाँ पे आप रह रहे हो या जिस एनवायरनमेंट में उसको कहाँ देखना चाहते हो, वो कुछ कुछ हद तक इम्पैक्ट भी होता है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो ये डिफाइन करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या है, दिस इज वेरी इंडिविजुअल, करेक्ट। ठीक है? तो मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट आई थिंक, लाइक मेरे मेरे मेरा अपना मानना ये है कि हर आदमी का अलग अलग वो होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, देयर विजन एंड देयर आउटकम्स, देयर स्ट्रेटजीज आर वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई ज़्यादा उसका स्टडी नहीं किया है, उसका कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या उसका विजन क्या है, फिर अगर स्टार्टअप स्टार्ट करता है देन दे गो मिल डाउन। स्टार्टअप्स के केस में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी टीम होती है। ओके ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी टीम होती है, उसके फाउंडर्स होता है, ओके। क्योंकि पैसा फाउंडर्स को दिया जाता है। कंपनी एक मीडियम है उस आइडिया को पूरा करने के लिए। आइडिया तो आपके या मेरे जैसे लोगों के दिमाग में आएगा, उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे। करेक्ट। कैपिटल इज अ रिसोर्स, हाँ कैपिटल विल नॉट एग्जीक्यूट, कैपिटल विल हेल्प यू एग्जीक्यूट, करेक्ट करेक्ट। इट इज अ फैसिलिटेटर, हाँ हाँ हाँ। राइट? तो जब आप स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फाउंडर्स, क्वालिटी ऑफ द फाउंडर्स, एग्जीक्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द फाउंडर्स, विजन ऑफ द फाउंडर्स, ये तीनों चीज़ें उनके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि मार्केट कितना बड़ा है जो इस पे आप ये करना चाहते हो, ठीक है? जितना बड़ा मार्केट उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तीसरा चीज़ होता है जो आप कर रहे हो उसका आउटकम इन द सेंस ट्रैक्शन क्या है, मतलब कैसे-कैसे आप आगे बढ़ रहे हो? हाउ आर यू मूविंग इट फॉरवर्ड? स्मॉल गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग गोल्स, सब डिफाइंड रहता है, वो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। आप ओके। आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में पहले तो बेसमेंट बनाओगे, उसके बाद फ्लोर्स बनाओगे, तो स्ट्रेटेजी इवॉल्व करती रहती है। और स्टार्टअप के केस में इट्स स्टेज ड्रिवन। एक्चुअली बताए इंक्यूबेट में स्टार्टअप को कैसे असेस करते हैं कि मतलब ये स्टार्टअप हमारे लिए सही है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, या फिर ये स्टार्टअप सही तो है बट इट इज़ नॉट इन्वेस्टेबल। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा जो अपना कोर स्ट्रेटेजी है उसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, ओके ठीक है? उसमें से मैंने 2 शायद अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए। तो पहला पैरामीटर फाउंडर का होता है, क्वालिटी ऑफ द फाउंडर। ओके सब मेजर मेजर डिसीजन फाउंडर के क्वालिटी पे होता है, ओके। मेजर।
क्योंकि पैसा उसको मिलता है। अगर मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया है, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करके 10 का 100 करोगे, ये प्योर आपकी कैपेबिलिटी है। हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, मेरा आइडिया उससे भी अच्छा हो। हाँ, सबका लेकिन आइडिया तो उसके लिए सबके पास आइडियाज़ हैं, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटी इंडिविजुअल की होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी शुड हमारे फ़ोकस में फाउंडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाउंडर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है मार्केट, जो मैंने पहले वाला आता है कि कितना बड़ा मार्केट है। अगर बड़ा मार्केट है तो एक से ज़्यादा कंपनीज़ फ्लरिश कर सकती हैं। ओके। निश मार्केट है, स्मॉल मार्केट है, तो मे बी 4-5 लोगों की जगह हो गई उसमें। तो असेसमेंट उस हिसाब से होता है। तीसरा चीज़ होता है जो आप बोल रहे हो उसमें आपने कितना किया है और कितना कर सकते हैं। वो एक जजमेंट कॉल होता है, हम ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। ट्रैक्शन के अंदर कभी-कभी कंपनीज़ अर्ली स्टेज होती हैं, उनको रेवेन्यू या उनको मार्केट शेयर के हिसाब से उतना मतलब दे आर नॉट बिग, बट हो सकता है उनके पास पेटेंट है जो डिफेंसिबिलिटी मोड क्रिएट करता है, ओके। ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो वो सब असेसमेंट्स 3rd लेयर पे होते हैं। मोड देखना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है। 4th लेयर होता है कॉम्पिटिशन। ओके। अब कंपटीशन के 2 वो हैं एस्पेक्ट्स। ओके। एक है अगर आप मोनोपोली बिज़नेस कर रहे हो तो कंपटीशन नहीं होगा, बट हम्म। उस केस में हो सकता है कि आपको आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको लोगों को चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए पैसा खर्चा करना हो। हम लोग अगर मोनोपोली है तो नई टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। मतलब सी मोनोपोली क्या है? इंडिया में मोनोपोली बिज़नेस क्या है? मतलब ओलिगोपोली तो मुझे पता है। मोनोपोली बिज़नेस अ, जैसे एक तरीके से जियो मार्केट में घुसा एकदम पूरा मोनोपोली कर दिया। वो बोल सकते हैं आप, बट इट स्टिल एन ओलिगोपोली मार्केट बिकॉज़ एयरटेल भी है, वोडाफोन की हालत करेक्ट। तो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मतलब हैविंग सेड दैट इट्स स्टिल अ ओलिगोपोली, एंटायर मार्केट ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली इज़ द क्लोजेस्ट मोनोपोली यू कैन गेट वेयर अ group of companies control majority of the market share. ओ। Single branded company controlling the whole market. मेरे को ऑन टॉप ऑफ द हेड याद नहीं आ रहा, मे बी आई हैव टू गो एंड रिसर्च कि मोनोपोली एकदम प्योर मोनोपोली क्या है। इज इट फेविकॉल? मतलब बहुत सारे तो चीजें हैं, लेकिन फेविकॉल कॉल स्पेसिफिकली। वो हो सकता है। पिडिलाइट है ऑलमोस्ट अ मार्केट लीडर, क्योंकि पेंट में एशियन पेंट्स के अलावा भी काफी पेंट्स कंपनी, हाँ। बट हाँ फेविकॉल आप बोल सकते हो, बट एडेसिव तो कोई जानता ही नहीं कि एडेसिव बोलते हैं, बोल के कोई भी जाता है फेविकॉल दे दो। ब्रांड वाइज हाँ, एज अ ब्रांड इट इज अ मोनोपोली, हाँ। that you can easily say. But there are other players, but the visibility, I think any business which controls more than say 50-60% market share is मोर a देन 50%। ओके। it will be a monopoly almost. Like the 60% market share of a huge market is a big. अगर 1000 करोड़ की मार्केट हो तो 600 करोड़ उसी के पास है। देन अगर 600 करोड़ के उसके पास है, इसका मतलब उसके पास पावर है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो बाकी 400 करोड़ के लिए वो एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद फ्रीबी दे के ले सकता है। जो लोग मोनोपोली बिजनेस चलाते हैं ओलिगोपोली, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी कम आती है क्योंकि दे आर ऑलरेडी कंट्रोलिंग द शेयर। हाँ। एडवर्टाइजमेंट आपको तब देना पड़ता है जब आप मार्केट को तोड़ना चाहते हैं। हाँ भाई, बाकी 400 अगर मतलब बाकी 40% जो है उसको तोड़ने के लिए। मे बी करेक्ट। सो चौथा कंपटीशन होता है, हाँ। और पांचवा चीज होता है कि हम किस दाम पे खरीद रहे हैं, विच इज कॉल्ड वैल्यूएशन। हाँ। सो व्हाट इज आवर एंट्री पॉइंट? तो इन पांचों फैक्टर को हम ध्यान में रखते हैं। हम्म। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ तो फाउंडर, मार्केट, ट्रैक्शन, कंपटीशन एंड वैल्यूएशन, ये पांचों चीजों पे जनरली स्क्रूटनी होती है, इवैल्यूएशन होता है। एंड सेक्टर वाइज वी आर एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है कि हम हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। कुछ-कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम शायद ना करें, बट दैट इज़ समथिंग सब्जेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ द स्टार्टअप, ठीक है? हाँ। ओके। एंड स्टेज इज़ एग्नोस्टिक। स्टेज एग्नोस्टिक का मतलब होता है हम बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज़ पर आवर लाइसेंस फ्रॉम सेबी। अच्छा। मतलब 10 साल पुरानी कंपनी, मतलब 100 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू की कंपनी, उसमें इन्वेस्टिंग वो प्राइवेट इक्विटी के केस में जाते हैं। बट जो भी कंपनी अभी मोटा-मोटी अच्छा धंधा कर रही है अर्ली स्टेज पे, अच्छा पकड़ लो महीने का 5 लाख से 5 करोड़ तक का धंधा अगर कर महीने का, तो वेरी मच डूएबल। ओके। ओके, अभी मैं आपकी जो सेबी वाला क्वेश्चन है ना, सेबी वाला जो आंसर है ना, उस पे आऊंगा। पहले आपकी जो 5 मैट्रिक्स है
थिंकीवेट की, उस पे मैं एक बारी बात करना चाहूँगा। जो अगर बोलेंगे फाउंडर क्वालिटी आप पहले देखते हैं, तो उसमें एक्चुअली आपको कैसे पता चला कि ये फाउंडर मतलब क्वालिटी इसमें है, ये चीज़ क्वालिटी है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है वो फाउंडर पॉलिश अपने आप को पॉलिश उस करके वैसे शो कर रहा है हाँ। और बैकएंड में वो एक्चुअली में उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा ग्रैन्युलर तरीके से समझाता हाँ। हूँ। डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ। ठीक है? हुँ। अगर आप पॉलिश का बात डिग्री से कर रहे हो, तो वी डोंट गो बाय थिंक्यूवेटर्स। एटलीस्ट मेरा अपना भी असेसमेंट ये रहा है, ओके। किस कॉलेज से आप पास आउट किए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि आजकल जितने भी मतलब स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स में या तो कोई आईआईटी या आईआईएम, ईदर नहीं, को-फाउंडर या फाउंडर। नहीं देखिए, उसमें एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि आईआईटी और आईआईएम के जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ। वो एक ऑलरेडी कॉम्पिटिशन देकर वहाँ पहुँचते हैं, ओके। ठीक है? तो फ़िल्टरिंग प्रोसेस हो चुका होता है। ओह! और उनके साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास करते हो, तो इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे बच्चे जाते हैं, आ, नॉट बिकॉज़ कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। ओके, दे डेवलप द स्किल सेट्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेज़ेंट, ओके, ठीक है? ओके। तो जो बच्चे मानिए आईआईटी नहीं क्रैक कर रहे हैं बट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टॉपर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के टॉपर हैं, वो शायद अपने आईआईटी एग्ज़ाम कुछ-कुछ मार्क्स से मिस किए होंगे। तो वहाँ पे भी वो लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? क्योंकि वो शायद आईआईटी में उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वजह से क्वालीफाई नहीं कर पाए बट दे आर स्टिल वेरी गुड स्टूडेंट्स हू हैव गॉट इंटू द हुँ, रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे आर स्टिल टॉपिंग दोज़ बोर्ड्स। क्योंकि कॉम्पिटिशन लाइफ में ऐसा होता है ना कि हर स्टेज में हुँ, एजुकेशन इज़ जस्ट अ मीडियम टू क्रिस्टलाइज़ दैट, हुँ, मतलब आप हुँ, सिलेक्ट कर सकते हो। तो हुँ, ये बोलना है कि आईआईटी के बच्चे सारे अच्छे हैं, हुँ, वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। अगर ये बोलना है कि आईआईटी के बच्चे को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, वो भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। हुँ, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आपको जब क्वालिटी जज करनी होती है, हुँ, हुँ, वो चीज़ आप जब बात करते हो तब जजमेंट में आता है। हुँ, हुँ, ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा कि आपका एजुकेशन या आपका डिग्री पहला 2-3 जॉब के लिए मैटर करता है, हुँ, 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 ठीक है? उन लोगों को नेटवर्क का फ़ायदा मिलता है। और क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन से जो लोग पास किए हैं, हुँ, हुँ, दे वुड हैव डन गुड इन देयर ओन स्फेयर्स एंड लाइव्स। करेक्ट, तो वो करेक्ट। एलुमनाई जो स्टेटस होता है, वो हाँ, हाँ। स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? वो हर किसी कॉलेज का नहीं होता। तो उनको उसको उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। सेकंड एडवांटेज एक्सपोज़र का मिलता है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हर वक़्त ही हुँ, कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं। हुँ, हुँ, कैंटीन के अंदर भी शायद वो लोग किसी एटलीस्ट यूएस के केस में स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कैंटीन में हर टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट इनोवेशन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो वो कल्चर जैसे-जैसे आप बिल्ड करोगे ना अक्रॉस द कंट्री, वो चीज़ आपको दिखेगा। वो बनने लगा भी है कुछ हद तक, लेकिन एक्सपोज़र्स हर इंस्टीट्यूट को उतना ही नहीं मिलता। तो कमिंग बैक टू द क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ द फाउंडर, हुँ, हुँ, the assessment is not based on the degrees but it ओके। is based on the capability post the conversation। मतलब लाइक आप जब इसके साथ बात करते हो ना, हुँ, हुँ, तो इतना तो मतलब इसी एक्सपीरियंस के साथ होता है ये चीज़ कि कौन आदमी कर सकता है और कौन आदमी नहीं कर सकता, या कौन आदमी कंजर्वेटिव है या कौन हुँ, आदमी बुलिश है, कौन आदमी पेसिमिस्टिक है, कौन आदमी ऑप्टिमिस्टिक है, कौन आदमी रियलिस्टिक है, कौन आदमी ओवर द टॉप है। हुँ, 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 वो सब चीज़ ही एसेस होती है। हुँ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो एक ही जैसा आइडिया 10 लोगों के दिमाग में आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन एग्ज़ीक्यूशन की होती है, हाँ, ठीक है? अब आप सिंपल अगर ये वाला मार्केट देखो, एजुकेशन टेक वाला मार्केट, हुँ, हुँ, ठीक है? कितनी कंपनीज़ आए, कितनी कंपनीज़ हुँ, नहीं रही, ठीक है? कुछ-कुछ कंपनीज़ आज भी हैं, जो चल रही हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सबको उतने ही पैसे मिले थे, हाँ, कोट अनकोट, वो तो है। लेकिन पीपल हैव सर्वाइव्ड। तो मैंने देखा ही है। आई डोंट वांट टू टेक आई नो आई मतलब शुड नॉट टेक नेम्स एक बट दैट एक इज़ बहुत बड़ा पूरा नीचे आ गया है और बहुत छोटा अभी बहुत बड़ा बल है। एंड नाउ दे हैव डन सो गुड कि बहुत छोटे-छोटे टियर 2 टियर 3 में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं सारी तरीके से। सो
इट्स अबाउट कि एंटरप्रेन्योर कैसे उसको ड्राइव कर रहा है, कितना ग्राउंडेड है, हम्म कितना रियलिस्टिक है, वो सब बहुत मैटर करता है। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है ना कि पैसा हम्म पैसे को खींचता है, हम्म ठीक है? तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये आप जान के रखो, मतलब आपको लोग पैसा देने के लिए रेडी रहेंगे। ओके। आप शायद ना लो, अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। ओके ओके। बहुत लोग सोच समझ के आप 2 क्लासिक एग्ज़ाम्पल्स अब यहाँ पे नाम लेना चाहिए, Zerodha एंड Zoho आर द 2 classic cases in India. Bootstrapped companies हम्म which are more than मतलब फैंटास्टिक। आज Zoho सब यूज़ करते हैं, Zerodha सब यूज़ करते हैं, नेट अच्छा, एनालिस्ट सो सबका मतलब आई हैव सीन कभी-कभी क्या होता है ना कि पीपल टेक द कमेंट्स ऑफलाइन। हम्म सबका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग Zerodha एज़ अ गो टू फॉर ट्रेडिंग। Zoho 90, I mean not 90, maybe more than 70% of the businesses are using some sort of Zoho application for पैसा some. मतलब So वो लोग पैसा नहीं रिस्क किए। हम्म अगर हीरोदा ने बहुत अच्छा किया, मतलब उन्होंने सीधा ब्रोकरेज इंडस्ट्री को ही मतलब डिस्टर्ब किया। मतलब डिसरप्शन तो दिखता है, मतलब लाइक इसीलिए वो असेसमेंट ऑन द मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसरप्टर के काम करता है। डिसरप्टर का मतलब होता है आप बहुत जल्दी बहुत चीज़ें कर सकते हो, जो स्केल जिससे स्केल आ सकता है, उसको डिसरप्शन कहते हैं। ट्रेडिशनली जो हम काम करते थे वो बहुत ही मैनुअल और ब्रिक एंड मोटर ड्रिवन होता था, तो ये धीरे-धीरे करके ग्रोथ लगा। टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन की वजह से वही चीज़ कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरीके से पेनिट्रेट करती है। तो उसको वो डिसरप्शन का केस वो। तो दैट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन द असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ होता है, नॉर्मली वीसीज़ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो, या फिर वो धीरे-धीरे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जैसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं स्लोली, लाइक मतलब एक कछुए की रेस में हो, वैसे वाले पे, या फिर कोई तेज़ी दौड़ने वाला है उस पे? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से जवाब दूँ। ओके। बिज़नेस 2-3 तरीके के हो सकते हैं। हाँ। एक जिसमें आप आप अपना 10 से 100 करोड़ का धंधा चलाओ और आपका घर और आपका लाइफ बहुत सुखी है। हाँ, मतलब भूख ही नहीं है उसके बाद, वो तो वो आएगा नहीं है, मतलब यू आर वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल। एंड यू आर कंफर्टेबल। दूसरा धंधा होता है कि आप थोड़े से एम्बिशियस हो हुँ, और आप ग्रो फास्ट करना चाहते हो हुँ, और उसके लिए आप भागीदार-साझीदार लेने के तैयार हो, ओके, ठीक है? ओके। उस पे एक चीज़ जो क्रिटिकलिटी डिपेंडेंट जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, वो हुँ, होता है कि उस केस में मार्केट का साइज़ देखना पड़ता है कि पैसा हुँ, डालने पे ही पैसा बनेगा, वो चीज़ हर मार्केट के केस में नहीं है, क्योंकि देयर आर सर्टेन मार्केट्स व्हिच हैव गॉट अ अ, लिमिटेड बैंडविड्थ, हुँ, 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 मतलब टेकर्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हुँ, हम सिंबल स्टेटस कहते हैं। हुँ, वो ऐसे वाले में जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी काम ही नहीं करती है। तो उस केस में आप कितना ही पैसा डालो, डज़न्ट मैटर, खरीदने वाले उतने ही हैं, ठीक है? लेकिन हुँ, कुछ-कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसा डालने पे हुँ, हुँ, डिसरप्शन और स्केल दोनों अनबिलीवेबल मैग्नीट्यूड में आ सकता है, ओके, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ। केस इन पॉइंट ई-कॉमर्स, हुँ, 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 ठीक है? हुँ, ई-कॉमर्स में जिन्होंने शुरू में पैसा डाला, हुँ, इट्स बेसिकली आपका दुकान ऑनलाइन हो गया है और आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल रहे हैं। आपको एक किराना में या एक फैशन स्टोर में जाकर अपने कपड़ा या अपना सामान खरीदने का ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, आज वो चीज़ आप इमीडिएटली घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हाँ, हैं। दैट इज़ स्केल एंड डिस्ट्रप्शन, करेक्ट। ठीक है? उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हुँ, हुँ, कि पहले टैक्सी स्टैंड पे जाके टैक्सी बुक करनी पड़ती थी। आज आपके फ़ोन पे वो सुविधा उपलब्ध है, आप कोई भी कन्वर, ओला, ब्लू स्मार्ट, रैपिडो जो चला ही रहा है। जो चलाना है हाँ, आप अपना आप लो, आपका आपके पास डिमांड है, आपके हुँ, पास सप्लाई है हुँ, हुँ, एंड पैसा डालने पे दैट इज़ डिसरप्टिंग दिस एंड हुँ, व्हेन इट इज़ स्केलेबल। हाँ, मतलब तो हुँ, वीसीज़ उस बंदे धंधे में इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पे सेकंड और थर्ड कैटेगरी जो मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट कैटेगरी इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस। हुँ, हुँ, आप अपना धंधा बनाओ, आपको अगर आईपीओ भी करना है तो उसके लिए आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस, हुँ, ठीक है? अभी एक ट्रेंड ये भी है कि लोग बेतहाशा पैसा खर्चा कर रहे थे फॉर ग्रोथ। हुँ,
एंड जब पैसा नहीं मिल रहा था तो दे हैड टू शट डाउन। आई थिंक जहाँ जो बिजनेसेस यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, आप पूछोगे यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है? यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है 8 रुपया का सामान 10 रुपया में बेचना, 2 रुपया का मुनाफा। दैट इज यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव। ओके। 8 रुपया का सामान खरीद के 6 रुपये में बेचना, लॉस। 2 रुपया का नेट लॉस इज यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव। ओके। सो फंडामेंटली जो बिजनेसेस यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हैं, हाँ जिस पे पैसा डालने से स्केल हाँ। और डिसरप्शन दोनों हो सकता है, हम्म and at a certain volume they become profitable also. हम्म। Those business are definitely VC fundable businesses. ओके ओके ओके। तो एक चीज़ बताओ सर, नॉर्मली कोई एक स्टार्टअप फाउंडर है, उसने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो पहला चेक कैसे निकाले? मतलब कोई एक स्टार्ट तो कर देता है नॉर्मली, आइडिया है, उसको समझ आ गया, उसने सोलो है एक तरीके से, मतलब लेट्स से मेरे को एक अच्छा आइडिया है, मैं स्टार्ट करने के लिए मैंने कंपनी फॉर्म कर दिया, आई हैव लेट्स से 5-6 लाख का कुछ मेरे पास कॉर्पस था, उसको मैंने स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट 1 मंथ पे मेरे को और पैसे चाहिए, देन व्हाट शुड आई डू? See, आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हो, अकेले करना इज वेरी गुड, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ पार्टनर इन क्राइम। मैंने ऐसे पार्टनर इन क्राइम एक ऐसा आदमी जो आपका भागीदार बन सके, साझेदार बन सके, क्योंकि हर काम आप अकेले नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वीसीज जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखोगे कि दे प्रेफर टू फाउंडर, मतलब टू ओके मेंबर्स। जनरली ये रहता है। सिंगल फाउंडर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट somebody who can share the workload helps and it takes two to tango। मतलब लाइक अब 2 लोग रहोगे तो कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी उसकी तबीयत खराब होगी, धंधा चलता रहेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से सिंगल फाउंडर रिस्क मिटिगेट हो जाता है। ओके। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आपका वो क्वेश्चन आया कि बूटस्ट्रैपिंग करने का अलग-अलग मेथड होता है। जब भी आप स्टार्टअप करो तो आपको फ्रूगल रहना पड़ता है। फ्रूगल का मतलब होता है कितने कम पैसा खर्चा करके आप सेम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। जब एंड शुरू में ये प्रॉब्लम सबको होती है। मतलब अच्छे से अच्छे लोगों को हुई है, गराज स्टार्टअप्स हुए हैं, दे हैव बूटस्ट्रैप्ड द कंपनी, पहला चेक मिलने में बहुत मुश्किल हुई है। लेकिन उस केस में आपको एंजल्स भी मिलते हैं, कोट अनकोट भगवान के भेजे हुए लोग, जो आपका स्टोरी सुनना चाहते हैं, ओके। जो आपका विजन समझते हैं। टाइम लगता है, तो आपको हसल तो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। अपना पिच को थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। पिच का मतलब है आप कैसे अपने आइडिया को स्टोरी फॉर्म में उसको सबसे कम मिनट में समझा सकते हैं। दैट इज व्हाट अ पिच इज। ओके। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ कि कोई स्टार्टअप है, वो लेकिन पिच डेक बनाए कैसे? और पिच डेक मतलब जो पिच शो करना है वो शो भी कैसे करे? सी, पिच का मतलब होता है आप अपनी कहानी को कितना आसान तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हो। कभी कभी एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो, कभी कभी एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हो, कभी कभी 5 या 10 अलग अलग स्लाइड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके। कंपनी की 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक बाहर वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। इन 5 चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आपका धंधा किस चीज पे बेस्ड है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कौन सा आपका बेसिक सर्विस या प्रोडक्ट प्रोपोजिशन है। बिजनेस मॉडल के उसके उसके बाद आता है मार्केट का मैपिंग। वेर यू फिट इनटू द मार्केट, मतलब ठीक है। अगर मैं एक वैल्यू चेन का बात करता हूँ, तो आप किस, मतलब अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, अब वेयर द बिजनेस फिट्स इन, ठीक है, उसको मार्केट मैपिंग कहता है। तो इसको हम मार्केट का साइज से भी डिफाइन करते हैं, ओके। टोटल एड्रेसेबल मार्केट से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब आप अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में धंधा करोगे तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, मतलब व्हाट विल बी द पोटेंशियल रीच यू कैन गेट। ओके। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिच के अंदर, वो होता है टीम। ओके, ये जो आप आइडिया है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ठीक है। चौथा चीज होता है ट्रैक्शन,
ट्रैक्शन में अगर जो काम आप कर चुके हो उसका क्या नतीजा है, मतलब लाइक आपको अर्लीस्ट रेवेन्यूज हैं, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो ऑल दैट इज ट्रैक्शन। ओके। उसी को बेस मान के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी देखा जाता है कि अगर आप ठीक। ऐसे करते रहोगे तो आगे कैसे दिखेगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड हैंड इन ग्लव चलता है। ओके, एक आपका बेसिक ट्रैक्शन पे होता है, एक आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पे होता है। ओके। ठीक है, एक स्लाइड हम देखते हैं कंपटीशन कैसा है आपके हिसाब से, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। ओके, ठीक है, ओके। तो वो लैंडस्केप में जनरली प्योर प्ले कंपटीशन जो एकदम आपके सेम बिजनेस लाइन में है, या फिर इनडायरेक्ट कंपटीशन जो आपके जैसा धंधा करते हैं लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ओके। ठीक है, सो वो एक साइड होता है। और पांचवा बेसिकली होता है आस्क, कि आप कितना पैसा रेज करना चाहते हो, वो पैसा कैसे खर्च करोगे, पैसा खर्च करोगे तो उसमें आप क्या क्या कंपोनेंट्स में खर्च करोगे, जिसको हम यूज ऑफ प्रोसीड्स भी कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो बेसिकली पिच एक नटशेल होता है इन 5 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स का, मतलब ये सारे मसाले हैं आपके सब्जी तरकारी बनाने के। ओके। बेसिकली आपका बिजनेस मॉडल, हाँ, मार्केट, हाँ, टीम, हाँ। पैशन और प्रोजेक्शन और आस्क। ओके। तो ये चीज आप कितने आसान तरीके से कन्वे कर सकते हो, हाँ, हाँ। दैट इज व्हाट अ गुड पिच इज ऑल अबाउट। ठीक है, हाँ। इसमें कभी कभी जब टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाता है तो उसमें आपका पेटेंट का इंफॉर्मेशन भी आ सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी हम उसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की भी बात करते हैं। कभी कभी हम उसमें, अगर आप अगर आपका रिकॉग्निशन अच्छा हो गया है हुँ। तो उसमें आपके रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशंस मीडिया में अगर आपका कवरेज है वो सब भी आता है, बट दीज आर पेरीफेरी थिंग्स। तो ये चीज़ इजीली अवेलेबल है, जो को बाहर वाले को समझने का तरीका ज़रूरी है वो है आपका धंधा क्या है, और आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, हुँ, हुँ। आपका टीम क्या है, हुँ, हुँ, हुँ। अट्रैक्शन क्या है, और हुँ, हुँ। आपकी ज़रूरत क्या है। ओके। आप ऐसा सोचो कि जनरली क्या होता है कि अगर आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो हाँ, हाँ। तो उसके पास 5 से 10 मिनट होता है। हाँ, नॉर्मल। ठीक है, अगर उस 5-10 मिनट में आपने अपना बिजनेस प्रोपोजिशन उसको सबसे आसान तरीके से समझाया, हुँ, हुँ। देन यू माइट गेट अ 30 मिनट मीटिंग और अ 30 मिनट कॉल। अच्छा, मतलब 5 मिनट अगर ठीक से बिताया तो जाके आपको 30 मिनट का जनरली जनरली मतलब यूएस यूएस में तो इसको एलिवेटर पिच कहते हैं, कि आपने ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में चढ़ा हाँ, हाँ। और फर्स्ट फ्लोर तक आपके पास टाइम है। अच्छा, जैसे ही गेट खुलेगा वो आदमी उतर जाएगा। करेक्ट। ठीक है, वो आपसे दूसरी बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक के सफर का अंडरस्टैंडिंग रहता है। ओह! जनरली उसको एलिवेट एज कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में हम वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू टू लिसन टू, क्योंकि सी एक फाउंडर पैशनेट भी होता है, हुँ, हुँ। डिटरमिन्ड भी होता है, और उसको थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, लेकिन आर्टिकुलेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप मुझे अपनी चीज आसान तरीके से नहीं समझा पा रहे हो तो आप दूसरे को कैसे समझाओगे। करेक्ट। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है ना। जो चीज आप रोज कर रहे हो वो चीज अगर आप मुझे आप आसानी से नहीं समझा सकते, हाँ। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि आप बाद में अपने कस्टमर को वो चीज़ समझा पाओगे। हुँ। सो दैट इज़ अ क्लासिक स्टोरी ऑफ अ गुड पिच, कि हाउ क्लियरली हुँ, एंड हाउ प्रिसाइज़ली हुँ, हुँ। यू कैन कन्वे योर स्टोरी एंड मैसेज। ओके। और ये स्टार्टअप फाउंडर मतलब अप्रोच कैसे करे फर्स्ट इन्वेस्टर को इटसेल्फ? और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है, उनके स्टेजेस कैसे रहते हैं? सी अप्रोच का ऐसा है कि एज़ अ फाउंडर यू शुड बी गोइंग टू, यू हैव टू रिमेन ओपन, सोशल। हुँ, हुँ। आपको अलग-अलग फोरम्स हैं, अलग-अलग एसोसिएशंस हैं, जैसे इंडिया में टाई है, व्हिच इज़ द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। देयर फाउंडर फोरम्स बहुत सारे हैं, इन्वेस्टर मिक्सर्स होते हैं, बड़े-बड़े मैगज़ीन्स के अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे योर स्टोरी का होता है, ये इंक 42 का होता है। हम अपने इन्वेस्टर थिंक्यूबेट अपना इन्वेस्टर मिक्सर्स करता है, अदर फंड्स के इन्वेस्टर मिक्सर्स होते हैं। देयर इज़ मेंटरशिप प्रोग्राम, अलग-अलग इंक्यूबेटर्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो एज़ अ फाउंडर आपको हर जगह ट्राई करना पड़ता है, व्हिच इज़ कॉल्ड हसलिंग। ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो आपको एज़ अ फाउंडर यू शुड बी रेडी टू हसल। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक मीटिंग में ही आपको पैसा मिल जाएगा, एक मीटिंग में ही आपको सक्सेस मिल जाएगा। हुँ, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट दीज़ थिंग्स कीप हैपनिंग। हुँ।
सो जहाँ तक कहाँ से पैसा मिल सकता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एफर्ट एंड पैसा आप तभी रेज़ करो जब आपको ज़रूरत पड़े। समटाइम्स इट सो हैपेंस कि आइडिया लेके आप पैसा लेने चले जाते हो। जब तक आप उसको कम से कम एक शेप नहीं देते हो, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आप पैसा दे दोगे तो मैं कंपनी फ़ॉर्म कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। ओके। अगर आप रियली किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो आपको कंपनी फ़ॉर्म करनी पड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। आपको बेसिक पार्ट पुर्जे एक जगह लगाओगे तब तो आपको गाड़ी बनाने के लिए पैसा लगेगा ना। करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक फैलेसी है कि आप पैसा दोगे तो मैं कंपनी चालू करूँगा, क्यों? ऐसा नहीं होता। उसमें मतलब आप चिकन एग का रुचि मतलब चिकन एग की बात नहीं है, इट शोज़ योर सिंसियरिटी एंड योर सीरियसनेस ऑफ। जो हाँ, और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि एक तो आपने पूछा कि कैसे पैसा मिल सकता है और दूसरा पूछा स्टेजेस का। मतलब क्या-क्या स्टेजेस स्टेजेस होते हैं। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको जनरली शुरू में बूटस्ट्रैप करके आप अपने सेविंग्स में से या फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको एकदम बिलीव करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, उसको हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड बोलते हैं। या उसके बाद वो इसको आप एक रिले रेस की तरह देखो कि हर एक लैप में वो बैटन किसी और के हाथ में चला जाता है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप आगे बढ़ोगे तो आपको एंजल्स मिलेंगे, ठीक है? जो आपके आइडियाज़ को सुनेंगे, आपका विज़न में विश्वास करेंगे और आपको पैसा देंगे। उसके बाद माइक्रो वीसीज़ का गेम आता है, माइक्रो वीसीज़ जहाँ पे हम एज़ थिंक्यूबेट वी आल्सो प्ले अ बिग पार्ट। ओके। तो हम टेक द बैटन फॉरवर्ड। उसके बाद स्टेज आता है प्राइवेट इक्विटी का। हाँ, वीसी स्टेज क्रॉस करने के बाद प्राइवेट इक्विटी की स्टेज ओके, आती है, सॉवरेन वेल्थ फंड की स्टेज आती है ओके। और अल्टीमेट गोल इज़ पब्लिक मार्केट्स व्हिच इज़ आईपीओ। सो ये पूरा जो रेस है अगर आप ठीक से दौड़ रहे हो, हुँ, हुँ। तो जनरली 8 से 10 साल लग जाते हैं। आईपीओ के लिए। हाँ, मतलब ओके, कोई-कोई बोलेगा मैं 7 साल में कर लूँगा, वेरी रेयर, वेरी रेयर। एक्सेप्शनल केसेस में 7 साल में आईपीओ होता है। आप कोई भी अभी कंपनी उठा के देख लो, स्विगी, ज़ोमैटो, पेटीएम, उन सबको ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल लगे हैं, ऑन एन एवरेज। ठीक है मतलब कोई अच्छी क्योंकि ये 12 की स्टार्टअप है, 12 या 13 की, आज 24 है, तो 10-11 साल उनको लग गए। ओयो को अभी तक नहीं आया है, वो आने वाला है, ये काफ़ी दिन से बातचीत चल रही है। ज़ोमैटो का आया था ऑलमोस्ट 8-10 इयर्स के टाइम फ्रेम के बीच में। फ्लिपकार्ट अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। सो बोलने का मतलब ये है कि आईपीओ इज़ द एंड गेम एज़ फार एज़ दिस बिज़नेस इज़ कंसर्न्ड, ओके। बट उसके बीच में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप इतना वैल्यू क्रिएट कर चुके होते हो कि कोई बड़ी कंपनी आपको एक्वायर कर सकती है, जिसको हम एम&ए भी कहते हैं, तो वो भी एक पोटेंशियल रूट ऑफ एग्जिट होता है। ओके। तो कोई जैसे वॉलमार्ट को दिखा कि फ्लिपकार्ट में बहुत वैल्यू है, हुँ। तो दे एक्वायर्ड इट। ओके। तो टेक्निकली वो भी एग्जिट है, वो भी चेंज ऑफ कंट्रोल एंड चेंज ऑफ हैंड है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, तो वो भी होता है। दैट इज अनदर वे दैट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेज फंडिंग, तो कोई बड़ी कंपनी आके बोलती है कि ठीक है तुमने यहाँ तक चलाया, अब हम चलाएंगे। हुँ। मतलब you have built a very good business which is real value add for everyone, so we will also be part of the journey and we'll take control of the business. That was an M&A. So these are the various stages और हर स्टेज में हर एक्टर का हर डिफाइंड रोल भी होता है, तो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट इन द इकोसिस्टम। हुँ। अच्छा एक चीज़ बताएँ थिंक्यूबेट तो बेसिकली सिंगापुर से है राइट? करेक्ट। एंड आपने 100 करोड़ का फंड जो है इंडिया में लॉन्च किया है। करेक्ट। तो ये प्रोसेस कैसा है? मतलब हाउ डू यू मतलब क्रिएट अ 100 करोड़ फंड इन इंडिया? सो व्हेन वी स्टार्टेड वी वर इन्वेस्टिंग थ्रू सिंगापुर। ओके, ओके, सिंगापुर का इकोसिस्टम में वी इन्वेस्टेड इन सिंगापुर स्टार्टअप्स, वी वर आल्सो लुकिंग एट इंडिया स्टार्टअप्स। ओके, ओके, ओके। सो इट वाज क्वाइट रिलेवेंट कि हम दोनों मार्केट्स में हुँ, हुँ। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट करें, देखें, इन्वेस्ट हुए। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, लॉट ऑफ द एनआरआईज एंड एक्सपैट्स हु आर आउटसाइड द कंट्री आर स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन इंडिया। ओके। तो अब अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी का बात करते हो, तो दिस इज द this is going to be the third largest economy. It has got a very very big market. In terms of internet penetration, it is almost second, if not third. I mean, हुँ। between US and China, this is the third largest ecosystem. राइट, राइट, राइट। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ है, एंड इफ यू लुक एट द प्रोजेक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबका ऑन एन एवरेज 7-7.5% के आसपास है, जो कि ग्लोबली पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी 3% या 4% राइट, करेक्ट, करेक्ट। सो
बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया वी फेल्ट दैट हम दोनों जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज बेटर टू कीप द ज्यूरिसडिक्शन विद इन इंडिया। ठीक है, तो लोकल करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि एफएक्स का भी बहुत फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स में। अच्छा। यस, तो जहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे यूएस डॉलर वाज 65 66, हाँ हाँ। आज 84 है। ठीक है, सिंगापुर डॉलर वाज 48, आज सिंगापुर डॉलर 65 पे है। ओके ओके। मिनिमम मतलब आप देखोगे तो इट्स अ बिग स्विंग 20% के आसपास। और करेंसी डिप्रिशिएट करने का मतलब होता है इट ईट्स अप इनटू द प्रॉफिट, क्योंकि जब आप रिपैट्रिएट करोगे तो उतना ही कम डॉलर आपको रिपैट्रिएट वापस मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि एक्सचेंज रेट गिर गया है। हाँ हाँ डाला एक्स्ट्रा डॉलर था, जाएगा कम डॉलर। हाँ। तो strategically it made sense to put the fund in India. So 100 crore is a mix of India and global. Global still holds upper hand, ओके and investments will continue. Hmm. We are very bullish on both Southeast Asia and India, ओके क्योंकि हमें लगता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन दोनों मार्केट से आएगी और आ रही है। यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग until unless there is something that we cannot see right now in terms of geopolitical risks. But that is how we structured this, and Singapore India have been very good in friendly terms. Abhi recently Prime Minister also visited Singapore. There has been a lot of exchange of ideas and trade relations. So deep down we feel कि ये दोनों मार्केट्स आर पॉइज्ड फॉर ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाई वी फेल्ट दैट इंडिया में भी एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है व्हाइल द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स विल कंटिन्यू फ्रॉम सिंगापुर। सो थिंक ऑफ इट एज अ यूनिक पोजीशन एज कंपेयर टू एनी अदर फंड की हम ग्लोबली सिंगापुर से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया में इंडिया सेबी वाले फंड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके। सर एक चीज़ बताएं, थिंक्यूबेट में आप सिंगापुर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ है, सिंगापुर की जो स्टार्टअप्स है और इंडिया की स्टार्टअप में क्या उन दोनों में डिफरेंस है, या फिर सिंगापुर मार्केट इज बेटर सुटेबल फॉर स्टार्टअप और इंडिया? सिंगापुर का मार्केट अभी इवॉल्व कर रहा है, ओके। इंडिया का मार्केट बहुत हद तक इवॉल्व हो चुका है। अच्छा। So, ओके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में अभी साउथ ईस्ट एशिया में मिला के आई थिंक इफ आई गेट द नंबर करेक्ट एंड मे बी 7 से 10 यूनिकॉर्न्स हैं। ओके। इंडिया में रफली 120 ऑड यूनिकॉर्न्स हैं। हाँ हाँ हाँ। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कंपनीज और स्टार्टअप्स विद वैल्यूएशन ऑफ एक्सीडिंग $1 बिलियन। $1 बिलियन करीब करीब 8,400 करोड़ रुपए की बात है। हाँ हाँ हाँ। तो मार्केट वाइज साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट कंज्यूमर ड्रिवन है, मोर कंज्यूमरिज्म। ओके। ठीक है, वहाँ पे टेक और सर्विसेज ग्रो कर रही हैं, हम्म, बट साइज ऑफ द मार्केट इज नॉट डीप इनफ। अगर आप सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया सबको जोड़ भी दोगे ना, तो भी इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर 2-3 स्टेट को मिला के उतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। अच्छा। ठीक है, सो फ्रॉम अ मार्केट डेप्थ परस्पेक्टिव हाँ हाँ। कंज्यूमर बिजनेसेस सिंगापुर में और टेक बिजनेसेस ग्रो हाँ। कर रही हैं, ओके। बट इंडिया के अंदर वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। be it fintech, be it space, be it consumer, be it D2C, be it cyber security, be it artificial intelligence, जो अभी मतलब पोस्टर बॉय है एकदम पूरे सारे इन्वेस्टर्स का। करेक्ट। लॉट ऑफ स्टोरीज आर रिटर्न, लॉट ऑफ टॉक इज हैपनिंग। सो दोनों मार्केट्स के अपने यूएसपीज हैं, ओके बट both markets will grow and India is a much larger market. ओके ओके। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, जो आपने 100 करोड़ लॉन्च किया है इंडिया में, ठीक है, अगर वही आप लेट से सिंगापुर में भी लॉन्च करें, तो फिर से अगर आपको लॉन्च करना पड़े, तो दोनों में आपको चैलेंजेस सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, एंड फॉर इंडिया स्पेसिफिक आपको क्या क्या रेगुलेशन को मीट करना पड़ता है? इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आपको फंड बनाना होता है ना, तो यू कैन गो टू वेज। अगर आप सो सेबी इज द रेगुलेटर और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इन इन इंडिया, एंड उसके प्रेस्क्राइब चेकलिस्ट है। ठीक है, तो आपको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। दिस इज यू आर डीलिंग विद मनी विच इज कमिंग फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट, बट इट इज अकाउंटेबल फॉर। ठीक है,
सो वी हैव फॉलोड ऑल द रेगुलेशंस एज पर सेबी। ठीक है, आप दूसरा स्ट्रक्चर एक गिफ्ट सिटी में भी बना है, जब फॉरेन से पैसा आता है तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर की तरह ऑपरेट करता है। तो यू कैन पुट योर व्हीकल देयर ऑल्सो। व्हीकल का मतलब होता है फंड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगापुर गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू ईज द प्रोसेसेस। पहले पहले अभी बीसीएफएम लाइसेंस होता था, अब बीसीसी स्ट्रक्चर्स ही अलाउ करते हैं वो लोग। मतलब एक ही कंपनी के अंदर आप अलग अलग टाइप के शेयर होल्डिंग्स अलग अलग कंपनीज में होल्ड कर सकते हो। ओह! सो देर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द सेक्टर इन बोथ द कंट्रीज। जहाँ तक पैसे का सवाल है, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स और रिटर्न्स जिस भी सेक्टर के लिए ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना बनता है, क्योंकि हुँ। एट द एंड ऑफ द डे आप आदमी इन्वेस्ट रिटर्न्स के लिए करता है। करेक्ट, 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 एक तो करेक्ट। इम्पैक्ट होता है डेफिनेटली, हुँ, बट रिटर्न्स भी मैंडेटरी होता है। तो जहाँ पे रिटर्न्स का पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पे फोकस और फ्लो ज़्यादा रहता है। हुँ, हुँ, तो रेगुलेशन वाइज वी बोथ कंट्रीज हैव डिसेंट एंड गुड रेगुलेशंस, हुँ, एंड वी हैव फॉलोड इट एंड एवरीबॉडी फॉलोज इट फॉर दैट हुँ, मैटर। बट बोलने का मतलब है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कम्बरसम है। हाँ, हुँ। सिंगापुर अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो थोड़ा कॉस्टली है। ओके, इंडिया रिलेटिवली लेस कॉस्टली, आई वुड ओ से रिलेटिवली लेस कॉस्टली। ओके, ओके। गॉट इट, गॉट इट। मुझे एक चीज़ बताएँ, आपकी टोटल जो 22 से 25 जो पोर्टफ़ोलियो है, उसमें भी आपका एक पोर्टफ़ोलियो ने आईपीओ लॉन्च किया है। करेक्ट। तो ऑन एन एवरेज आपको कितना मल्टीपल मिला? सी जो आईपीओड कंपनी थी, वी गॉट अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, आई वुड से नॉर्थ ऑफ 4-5x रिटर्न, एंड क्या टाइम प्लान था? रफली 5-6 years 5-6 ईयर में 5 टाइम? ऑन एन एवरेज। लोकल करेंसी और इंटरनेशनल दो अलग करेंसी में रहा वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके लिस्ट हुआ तो मैं सिंगापुर डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, और इंडिया में जो एग्जिट हुआ है वो 2 साल में 2x प्लस है, 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर 2x। हाँ, तो हुँ, there are a lot of things that are happening. Markets are getting much mature. So I would see कि not just us, not हुँ, think you it, but overall market में भी we will see a lot of activity in 2025, हुँ, क्योंकि flow of money will potentially increase a little, हुँ, uh, given that the US elections are over. हुँ, Let us see. But overall, I think good startups will get good money. ओके। जैसे आपने बोला कि ये सिचुएशन कभी-कभी आ सकता है, तो ऐसे कौन-कौन से स्टार्टअप को या फिर ऐसे लेट्स से इस तरीके से कि स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि कभी डाउन मार्केट में भी उनका फंडिंग ना रुके या फिर उनकी स्टार्टअप शट डाउन ना हो? So basically, there were 3 reasons जहाँ पे founders felt कि पैसे का source कभी बंद नहीं हो. So the founders which were able to pivot, the founders which were nimble on the feet, changed their business models. There was a classic situation जहाँ पे आपको लगा कि फंडिंग विंटर की वजह से लोग, मतलब कंपनीज आर नॉट एबल टू रेज मनी, बट बिजनेस मॉडल्स हैव टू बी यूनिट इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव ग्रोथ के लिए जो भी पैसा चेज हो रहा है वो हैज़ टू बी स्पेंट इन अ वे दैट आपका यूनिट इकोनॉमिक्स ट्रेडिश ना हो, एंड आज नहीं तो कल आपकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहे। तो दैट इज वेयर द फाउंडर शुड ऑलवेज फोकस ऑन। जो शटडाउन्स हुए हैं, दैट इज बिकॉज द बिजनेस मॉडल्स वर नॉट वायबल इनफ। हुँ। तो इसी तरह अगर जी आपकी जो थिंकबैक की थीसिस है, वो कैसे आप डिफाइन करते हैं कि इस थीसिस पे हम लोग करेंगे? टेक्निकली माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थिंकबैक थीसिस? सी थिंकिवेट थीसिस इज सेक्टर एग्नोस्टिक। ओके। एंड सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ सर्टेन ऐसे सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे हम करेंगे, और ऐसा सिर्फ सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम नहीं करेंगे। हुँ, इट इज द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स। ठीक है, ओके। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हुँ, क्लाइमेट टेक और हुँ, डी टू सी सेलेक्टिव बिजनेसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट businesses going forward according to our own internal assessment. AI, because proliferation of tech is happening, ओके।
क्लाइमेट बिकॉज आप देख रहे हो पोल्यूशन दिल्ली में क्या हालत है, तो देयर हैज टू बी इंटरवेंशन फ्रॉम द प्राइवेट परस्पेक्टिव which can which can be done through sustainable transportation which is happening through the EV proliferation. उसके अलावा आपका D2C जो छोटे-छोटे ब्रांड्स अब बन रहे हैं, वो दे आर मेकिंग अ रियल इम्पैक्ट। नॉट इन द सेंस स्मॉल टाउन से भी आ रहे हैं। एग्जाम्पल मामा अर्थ इज अ ब्रांड which has lot of other products in it. Then Beardo एक एग्जाम्पल है। तो D2C में they we have seen very good brands coming up. एंड साइबर सिक्योरिटी विल प्ले अ बिग पार्ट बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में क्या है कि जो भी डेटा आप जनरेट कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी विल आल्सो प्ले अ क्रिटिकल पार्ट। अदर देन दैट वर्टिकल सैस एंड हेल्थ ये सब तो इन्वेस्टमेंट्स होते ही रहेंगे, कंज्यूमर में भी होता रहेगा। बट अगर आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग करने बोलोगे तो मे बी दोज फोर सेक्टर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फाइंडिंग गुड स्टार्टअप्स इन दोज सेक्टर्स। सो बेसिकली थिंक्यूबेट प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन। Diversification and also something to do with sustainability. मतलब sustainable businesses and sustainability operations both. ओके ओके। सर एक चीज़ है, सेक्टर बाय सेक्टर में भी आप ये कैसे चूज करते हैं इस सेक्टर में लेट्स से 5 स्टार्टअप है, ठीक है, तो उस पांचों में से आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या क्राइटेरिया रहता है? It boils down to the founders. ओके ओके। मतलब सी जो पैसा ठीक से हैंडल कर पाएगा या लेपेबल है हैंडल करने का, पैसा एंड में उसी को मिलता है। मैं आपको बहुत एक ऑफ द लाइन एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई टीम सिलेक्ट होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि 11 के 11 प्लेयर अच्छे नहीं होते। कैप्टन उसको बनाया जाता है, आइदर वो बेस्ट प्लेयर होता है या उसको प्रेशर मैन मैनेजमेंट स्किल्स और प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स उसकी बेस्ट होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड बनता है, लेकिन गवर्नर या चेयरमैन उसको बनाया जाता है जिसकी बात बाकी 5 लोग भी सुने, ठीक है? तो इट बॉइल्स डाउन टू द पर्सन, द टीम, क्यों जो पैसा हैंडल कर रहा है, जो एग्जीक्यूट करेगा। तो कहीं न कहीं फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू द टीम। बाकी पैरामीटर्स तो बहुत सारी कंपनीज़ की सिमिलर हो सकती हैं। आइडेंटिकल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता है, बट एक पैटर्न की हो सकती हैं। बट टीम और फाउंडर बहुत मैटर करता है। अगर आपने टीम बोला कि टीम मजबूत होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तो लेट्स से कोई एक सोलो फाउंडर, ठीक है, अब उसको को फाउंडर निकालना है, ठीक है, एंड देन पूरा टीम बनाना है, तो वो फिर को फाउंडर तो सबसे पहला एम्प्लॉय होगा उसका, उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए पहले को फाउंडर लाने का? सी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स पे जाना चाहिए। अगर आप टेकी हो तो आपको एक बिजनेस बंदा चाहिए। ओके अगर आप बिजनेस वाले बंदे हो तो आपको एक टेकी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कैसा स्टार्टअप बनाना चाहते हो। ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जब आप को फाउंडर ढूंढ रहे होते हो तो सिमिलर विजन, सिमिलर पैशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स, ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपके साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप देखना पड़ेगा कि आप एक दूसरे को समझ पाते हो कि नहीं। भी वो बहुत टाइम का स्टार्टअप, अच्छी स्टार्टअप्स खराब होते रहती है बिकॉज दोनों फाउंडर लड़ लेता है। भाई भाई भी लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं, दोस्त भी लड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आपने ये पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक गोल के लिए की है, एंड वो गोल है टू create an impact and make money, and also ensure कि you are doing what you had thought of. So finding a similar minded person is very very important, very very important. अच्छा। कैसे ढूंढना है, वो आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, सोशल होना पड़ेगा, आइडियाज ओपन रहना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा और अडेप्टिव होना पड़ेगा। मतलब हर वक्त आपको आई वुड से अडॉप्ट भी करना है और एडजस्ट भी करना है, बिकॉज हर समय कंसेंसस होगा इसका ज़रूरत। मतलब आई हैव नॉट सीन कि यू विल गेट 100% कंसेंसस। वैल्यूएशन के पार्ट में फिर दोबारा आऊँगा, ठीक है। जैसे आप एक एक तो फर्स्ट एंजल राउंड हो गया, ठीक है, या सीड राउंड हो गया, उसके बाद आप आ जाते हैं एज़ अ वीसी, ठीक है, उसके बाद हम सीड भी करते हैं अदर। हाँ, ओके, वेल यू आर आल्सो देयर ऑन सीड एंड हाँ, वी आर अर्ली स्टेज। अच्छा यू आर अर्ली स्टेज, ठीक है। देन उसके बाद आप आईटीवी को जाएँगे। उसके बाद हम आईपीओ,
नहीं, नहीं, वीसी आएँगे पहले, हाँ, राइट? वीसी के बाद कौन आता है? प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी। हाँ। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई कंपनी को यूनिकॉर्न बनना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन किस-किस हिसाब से बढ़ता रहता है नॉर्मली? सी आपको अगर ये सोचना है कि आप यूनिकॉर्न बनोगे तो आप ऐसे गलत सोच है। यू हैव टू क्रिएट वैल्यू हुँ, हुँ। एंड द वैल्यूएशन विल फॉलो। ओके। राइट, ये मैंने आपको शुरू में भी एक चीज़ बताया था कि अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन चेज़ करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि वैल्यूएशन में है कि आप पैसा रेज़ करते रहो बार-बार और वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। लेकिन वैल्यू क्रिएट करोगे तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ता है। तो अगर किसी को यूनिकॉर्न बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी उसने एनविसाज किया है, वो वाला चीज़ उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट इज़ द कोर बेसिक हार्ड वर्क दैट हैज़ टू बी डन। हुँ, हुँ। तो थिंक्यूबेट अर्ली स्टेज में आने के बाद स्टार्टअप को कैसे नर्चर करता है? ताकि वो अगले स्टेज में भी जाए, फिर अगले स्टेज में जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सो बेसिकली हम सिर्फ पैसा लगा लगा देंगे ऐसा वाली बात नहीं है। वी ऑल्सो हैंडल द कंपनी। हम साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी वेल नेटवर्क्ड हैं, तो कोई भी कंपनी का अगर ग्लोबल प्रोडक्ट है, वी विल टेक देम टू साउथ ईस्ट एशिया। हमारे अपने इंटरनल नेटवर्क में काफ़ी सारे मेंटोर्स हैं जो उनको अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग सेगमेंट्स में हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस डेवलपमेंट हो, चाहे वो फॉरेन एक्सपेंशन हो, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, चाहे वो टेक्निकल हो, एडवाइज़री। सो वी हेल्प स्टार्टअप्स टू हेल्प बिल्ड टेक आल्सो। हमारे अलग-अलग पार्टनरशिप मॉडल्स हैं, मतलब वी आर ओके। पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट, क्लेवर टैप। सो उनके जो सर्विसेज़ हैं वो भी आपको मिलते हैं, क्लाउड सर्विसेज़ एंड एवरीथिंग। So it's a holistic approach that we take to help a startup to grow from where we have invested in. काउंट लाइक थाली, कि मतलब एक बार ही आ जाओ तो सब मिले एक साथ ही। Assorted. ओके। तो एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा जी पैकेज मिले तो हर कोई स्टार्टअप आपके पास आना चाहेगा? हाँ, आना तो बिल्कुल चाहता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको भी उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसके साथ सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि इट इज़ नॉट दैट कि क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड बैंडविड्थ और रिसोर्स है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम जिसके साथ भी पार्टनरशिप करें, एसोसिएट हों, उसको हमारा फुल सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि हम अगर अ, ज़रूरत से ज़्यादा कमिट कर देंगे और फिर खुद को डिलीवर नहीं कर पाएँगे, दैट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन आवर कैपेबिलिटीज़। वैसे फाउंडर को वीसी कैसे मिलेगा? लेट्स से एंजल तो हो गए उनके आसपास के लोग, या फिर हुँ। कोई उनके जानकर के, या जानकर के बॉस हो गए। बट वीसी वीसी को कैसे वो अप्रोच करें? अगेन इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हुँ, आपको जो भी फंड किया है, लॉट ऑफ द एंजल्स आर पार्ट ऑफ द वीसी इकोसिस्टम, सो दे विल स्टार्ट रेफरिंग यू एज़ यू ग्रो। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें भी, इस इकोसिस्टम में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? कोई है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रेट फैसिलिटेटर। वो ओके। मतलब आपका डीआईपीपी स्टार्टअप एप्लीकेशन से लेकर टैक्स हॉलिडेज़ को लेकर, अभी तो एंजल टैक्स भी हट गया है इस साल के बजट से। वॉव! सो सो देयर इज़ अब एंजल्स वाले खुश हो जाएँगे। सो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं। हुँ, Uh, there are lot of benefits that are given to the startup. गवर्नमेंट के अंडर अलग-अलग ब्रांचेस है जहाँ से इक्विटी ग्रांट मिलता है। ओके, पेटेंट ऑफिस इज वर्किंग very well. Lot of patents are getting granted. So government is doing its bit. ओके। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाइज़ आप ऑलरेडी इस ऊँची डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पे ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वाइज़ इंडिया मतलब बिहाइंड है कि एट पार है? ये ट्रिक क्वेश्चन है। See, technology wise US and China are ओके, much ahead. ओके। लेकिन the amount of research and innovation that is taking place in India, हुँ, हुँ, sooner or later we will catch up. I would say कि आप अगर मुझे बोलोगे कि are we there? हुँ, The answer probably would be no. हुँ, हुँ, But there's a lot of good research that is happening in India. AI में पकड़ लो, natural language processing में पकड़ हुँ, लो, machine learning में पकड़ लो, मतलब lot of vertical SaaS companies are coming up. So research and development and hardware की तरफ भी robotics, deep tech especially, that's growing pretty fast. Sustainability की तरफ, तो I think we are not yet there in terms of US and China, but we are very much progressing in the right way. हुँ, हुँ।
और मैन्युफैक्चरिंग वाइज क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम्स में काफ़ी सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पे न्यू स्टार्टअप्स एंड न्यू कंपनीज, आई थिंक सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग विल इम्प्रूव इन इंडिया। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक ऑलरेडी कैचअप कर गया है। सिर्फ कुछ कुछ शेयर प्राइसेस भी देखोगे तो लॉट ऑफ दोज कंपनीज हैव सीन गुड रिजल्ट एज फार एज electronics manufacturing is concerned, mobile manufacturing and other electronics. तो आई डू बिलीव दैट मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उस स्केल पे नहीं हुआ है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स शैल टच वेरी क्लोज टू वेयर, आई मीन चाइना तक पहुंचने में सब ठीक रहा तो अभी 1 डेकेड लग सकता है, मतलब Okay. 5 से 7 साल तो लगेंगे, ओके, सो बेसिकली बट द थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, आपके हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बन सकते हैं? 27 कैसे? कैसे? हाँ, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, अगर हम वी कैन कीप द 7.5% और डॉलर डिप्रिशिएट नहीं कर जाता ड्रास्टिकली, ओके, तो 27-28 टाइम फ्रेम तक वी शुड बी देयर। मोर पावर टू ये सच में हो जाए। बीइंग अ इंडियन आई वांटेड टू बी हाँ, देखिए टाइमलाइंस के हिसाब से अगर डॉलर डिप्रिशिएट करेगा तो 2030 भी हो सकता है, ओके, क्योंकि आप तो यूएस डॉलर टर्म्स में फिर ट्रिलियन का कैलकुलेशन करते हो करेक्ट, ना, करेक्ट, तो अभी 84 है, आपका लाख करोड़ तो उतना ही रहेगा। हाँ, 1 लाख करोड़ इज 12 बिलियन करेक्ट, आज के करेक्ट, केस में। तो अगर डॉलर डिप्रिशिएट किया तो थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, बट अगर डॉलर एंड आईएनआर पेयर, मतलब आई अगर थोड़ा ऐसे ही रहा या थोड़ा इम्प्रूव कर गया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, ओके। एंड इंडिया में थिक्यूबेट का क्या प्लान है अहेड ऑफ 5 ईयर एंड 10 ईयर? सो थिंक्यूबेट वांट्स टू रिमेन अ गुड इन्वेस्टर। व्हेन आई से गुड, बैक गुड स्टार्टअप्स, अर्ली फाउंडर्स को इकोसिस्टम में हेल्प करना, एंड आल्सो टेक देम ग्लोबल। सो विल कीप इन्वेस्टिंग, ओके, दैट इज द प्रायोरिटी फॉर अस। Having said that, globally we have other plans as well. So we'll take it one at a time. और इंडिया में आपकी मतलब ये थिंक्यूबेट की साइकिल क्या रहता है? Cycle in the sense investment cycle. हाँ, Generally, holding period is anything between 4 to 6 years. ओके, So हम अगर अर्ली स्टेज पे आ रहे हैं तो जनरली हर 15 महीने में एक राउंड होता है। ओके, तो अगर आप 3 राउंड भी पकड़ते हो ऑन एन एवरेज, मतलब 18 महीने का 3 राउंड पकड़ते हो तो 54 मंथ्स होते हैं। ओके, तो ऑन एन एवरेज इट इज 5 years। ओके, ओके। तो सर एक बात बताओ, ये थिंक्यूबेट की जो आपके टोटल पोर्टफोलियो है, इसमें से कितना अप्रॉक्सिमेटली इंडिया में है? 70%, 60 to 70% इंडिया में, ओके, 30% ग्लोबल है। ओके, उनमें से ऑलरेडी आपने 2 एग्ज़िट कर दिए। हाँ। वॉव! मतलब ये तो काफ़ी एक एग्जिट इंडिया का है, एक एग्जिट अच्छा टोटल मतलब इंडिया में एक एग्ज़िट हो जाए। दैट आल्सो इक्वल टू मोर देन 10% अगर 60% में भी अगर लेट्स से आपका 14 है, लेट्स से 14 में भी अगर आप एक एग्ज़िट करके दैट इज़ आल्सो ऑन अबव द एवरेज। हाँ, मतलब वी वांट टू डू मोर एंड देयर आर कंपनीज, एक कंपनी का एसएमई आईपीओ आने वाला है। ओह! तो लेट्स सी, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मोर पावर टू आपके ऐसे में आई तो अच्छा ही चले। एंड आप ये कैसे बताएँगे मतलब आप अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है मार्केट पे, ठीक है? एंड लेट्स से उसका टोटल कॉर्पस है 1 करोड़, हम्म। ठीक है? उसको कितना परसेंट स्टार्टअप पे लगाना चाहिए या उसको स्टार्टअप पे लगाना नहीं चाहिए? मतलब उसका टोटल कॉर्पस ही 1 करोड़। सी, डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके। ठीक है, आप स्टार्टअप का गेम तब खेलो हुँ, जब आप, सी, जनरली आप कोई भी स्टार्टअप के बंदे से बात करोगे तो बोलता है कि ये पैसा लगाने के बाद भूल जाओ कि इससे कुछ रिटर्न मिलेगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, हमने भी वैसे ही किया है। ओके। लेकिन देयर इज मेथड टू द मैडनेस। जब आप ये पैसा लगाते हो तो आप सोचते हो कि कौन सा चीज फ्यूचरिस्टिकली काम करेगा, हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन पहला दिन ही सोचोगे कि इससे मेरे को 10x 15x 20x रिटर्न मिलेगा, वो आएगा लेकिन हो सकता है पूरे पोर्टफोलियो से आए, एक हर कंपनी से आएगा जरूरी नहीं है, आएगा नहीं भी, आज मतलब हुँ, 99% चांस है हर कंपनी से नहीं आएगा।
but the overall portfolio will do this, give you a good return. So diversification is important. और जहाँ तक 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो इट डिपेंड्स कि आप उसमें से क्या एलोकेट करना चाहते हो। कुछ आप स्टेबल में डाल सकते हो, कुछ रिस्की में डाल सकते हो। दैट इज समथिंग इंडिविजुअल चॉइस है। बट हाँ, सेबी का नॉर्म ये कहता है कि अगर आप एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 25 लाख की होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. दैट इज द prescribed norm to become an angel investor in India. Okay, okay, got it, got it. And So diversification और कितना allocation करना is a individual choice. ओके, ओके, गॉट इट। अगर मेरे को लेट्स सपोज किसी कंपनी में मैंने 5 लाख डाला एज ए एंजल, तो मेरे को लेट्स सपोज मेरे को चाहिए 20x, मतलब वो 5 लाख को 1 करोड़ बनाना है, ठीक है। तो किस स्टेज में मेरे को जाना पड़ेगा उसको 1 करोड़ पे रेस करने के लिए, मतलब 1 करोड़ की वैल्यू कराने के लिए? डिपेंड करता है, आप जितना अर्ली घुसोगे उतना चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनिशियली ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। एक पॉइंट के बाद ग्रोथ थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है उस मैनिफोल्ड टाइम से। सो 100 करोड़ से 1000 करोड़ की जर्नी 10x है। 1000 करोड़ से 3000 करोड़ की जर्नी 3x है। 3000 crore is a larger number, but the delta change is less. So the earlier you get him, the you are giving yourself a better chance to get more returns if you are investing in the right company. तो स्टार्टअप में नॉर्मली क्या स्टैंडर्ड रहता है कि कितने कंपनी में स्प्रेड करेंगे तो आपका 100x रिटर्न हो जाएगा? 100x रिटर्न तो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर का अभी तक एक आध इन्वेस्टर में हो सकता है, लेकिन अगर आप फंड पर्सपेक्टिव से 100x रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फंड बोलोगे तो आई विल बी सरप्राइज्ड इफ एनीबॉडी हैज इट। हाँ, So generally good funds will return you 7 6 7x average, ओके, ओके। but these are big funds. Okay, and that also I'm giving you a very higher number. Generally 2 3 4x भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचो 100 मिलियन का 400 मिलियन जनरेट किया तो 300 मिलियन की प्रॉफिट हो जाती है। दैट्स अ बिग नंबर। ओके, क्योंकि आप हर स्टेज पे इन्वेस्ट करोगे तब जाके वो डेल्टा आपका वर्क करता है। ठीक है, एवरेज आउट हो जाता है सर। तो एज ए इन्वेस्टर आप ये मान के चलो कि आप अगर 10 इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आई एम गोइंग ग्रैनुलर एंड लेमैन टर्म्स, उसमें से 2 कंपनी आपको बहुत अच्छा एग्जिट देगी और 4 कंपनी आपको एवरेज एग्जिट देगी और 4 कंपनी बंद भी होगी। सो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में यू हैव टू लुक एट इट सैंपल साइज ऑफ 10, जिसमें से 20% विल गिव यू अबव एवरेज रिटर्न, 40% विल गिव यू एवरेज रिटर्न एंड 40% विल बिकम डेट। आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टअप पे अगर फंड डाल रहे हो तो इस इक्वेशन को आपको मान के रखना चाहिए। 100% कभी भी प्रॉफिट निकालना सोचना नहीं चाहिए। ओवरऑल एवरेज आउट करोगे तो आपको आपके कॉर्पस का रिटर्न पक्का मिलेगा, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट से मिलेगा वेरी सेल्डम। मतलब देन यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टर, यू हैव एन आई फॉर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स एज एन एंजल एंड। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि 10 के 10 कंपनी ही पूरा, मतलब सारे कंपनी बन जाए, उनसे यूनिकॉर्न बन जाए, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। करेक्ट, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन कि आपकी अपनी पर्सनल जर्नी में ऐसा कौन सा 3 स्टेजेस आपने देखा है जो आप दोबारा उस स्टेज पे नहीं जाना चाहेंगे? पर्सनल जर्नी में 3 स्टेज। सी व्हेन आई क्विट माय एचएसबीसी जॉब, उस टाइम पे मेरे को अपना अपना काम करना था ये पता था, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो जो लोग एक ब्रांड से एसोसिएट करते हैं एक इंडिविजुअल को और एक इंडिविजुअल को अलग से देखते हैं, उसका डिफरेंस पहली बार पता चला। ओके। कि आप अगर एक टैग के साथ जाते हो तो कैसे लोग आपके साथ दे स्टिल रिमेन फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 100 है तो आपकी पर्सनल वैल्यू सिर्फ इंडिविजुअली शायद 50 होगी। तो वो असेसमेंट मेरे को पहली बार 2013 में वो आई कुड अंडरस्टैंड। सेकेंड चीज़ है
नज़दीक का फ़ायदा के लिए दूर का नुकसान मैं नहीं किया हूँ और करना भी नहीं चाहता। बट देयर विल बी प्रेशर्स टू गेट अ शॉर्ट टर्म गेन एंड लूज़ लॉन्ग टर्म। तो वो चीज़ अगर मैं देखूँ अपने करियर में तो विल नॉट वांट टू डू दैट। एंड थर्ड थिंग इज़ कि खराब टाइम आता है और आएगा, साइकिल्स में आता है। बहुत टाइम आप ट्राई करते हो, चीज़ें नहीं होती। अब बहुत टाइम आप नॉर्मल काम करो लेकिन अचानक से एकदम विंडफॉल, प्रॉफिट, अच्छे काम बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग और एज़ अ पर्सन यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि लक के साथ क्या है ना कि इट इज़ लाइक वेदर, इट चेंजेस। कहीं न कहीं लक विल फेवर यू, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशन हो। तो यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो बोलने का मतलब मेरे लाइफ के ये 3 चीज़ें जो मुझे पता है इंस्टेंसेस जो जो आपने पूछा, मे बी एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेयर करना थोड़ा-सा टची भी है। बट ये तीनों चीज़ें ही थीम है। और एक सबसे बड़ा जो वैल्यू सिस्टम है ना कि आप जब रूम में नहीं रहते हो ना, तभी आपकी रियल वर्थ है। तो जब तक आप रूम में बैठे हुए हो, तब तक तो आप रिकॉग्नाइज्ड रहोगे फॉर व्हाटएवर रीजंस। बट रूम छोड़ने के बाद भी अगर आपको प्रेज़ मिल रहा है, तो आप समझना कि यू हैव डन सम गुड जॉब। Now that makes sense. Okay. And how do you manifest your success? थिंकिंग पॉजिटिवली ऑल द टाइम, क्योंकि आप नेगेटिविटी के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। आपको हर स्टेप ऑफ द वे में यू विल सी रेजिस्टेंस, यू विल सी हर इंडिविजुअल का अलग व्यू पॉइंट होता है, तो आपको नेविगेट करना पड़ता है, मनूवर करना पड़ता है। कभी-कभी डिबेट करना पड़ता है, कभी-कभी आर्ग्यू करना पड़ता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज वन थिंग कि अगर आप ठीक से कर रहे हो कोई सा काम, तो कुछ ना कुछ हम बोलते हैं सेटिंग सेटिंग हो जाती है, यू विल गेट रिजल्ट्स। यू हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट पाथ। Thank you, Edison sir, for giving us a chance to host you. It was honor, and thank you for giving us so much knowledge to us. No, thank you, Vijay. I wish you all the best for all your endeavors, and lovely talking to you today. You have been a very gracious host, and I hope I will be back someday Thank you, sir. in the near future. Thank you, sir. We would like to love you to have you back. Thank Thank you so you. much.